Hello everybody, good morning guys, and today we are going to discuss again some basic concept regarding with lines and angles. So you all are again welcome in the India's biggest NDA coaching class, that is the SGB Defense Services Academy Shahpur, which is located at Nagpur Bhandara Highway, and today we are going to discuss remaining questions of not a questions, it's a basic of line and angle. So move my dear student. Today's first topic is intersecting lines, and what is given when the two lines or the line segment cross each other, and when it's across each other, that time it makes a point of intersection. See, now if two lines are zoom पास करते करते क्रॉस करके गई, और जब लाइंस क्रॉस कर गए ईच अदर, तो वो एक सिंगल पॉइंट पे एक दूसरे को क्या हो गई बेटा, सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गई. Then they are called the intersecting lines, और उसे क्या कहा जाता है, तो intersecting lines. It means if I name here L1 and this line L2, so we should say L1 and L2 are the intersecting line, and they are intersected at, just give the name, at point P. Now when two lines are intersects vertically, then the opposite angles are equal. Opposite angles यानी see the position. 1 is opposite with the 2, 3 is opposite with the 4. It means makes the opposite angle at the position 1, 2, 3, 4. Similar, one more concept is here after intersecting line, that is a line segment, which I already explained in the last video. The line segment means a line is a part of line. जब हम लोग इतनी बड़ी लाइन ड्रॉ करा रहे बेटा, यहाँ पे किसी भी दो पर्टिकुलर पोजीशन पे मैंने अगर ये ऐसे डॉट्स रख दिए, a fine dot which is called as a point, so this much part is called as a line segment. Okay, and line segment is a part of line, and it has, this is very important, that is the line has two end points and a definite length. Line having not a definite length, but line segment having the definite length, and ray is a line segment extended unlimitedly on a single direction on one end point, और एक जगह फिक्स है और एक जगह वो मूव हो रहा है. ठीक है, सी अ लाइन कंटेन्स इनफाइनाइट पॉइंट्स. एस नो डाउट लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं. लाइन इज मेक्स बाय यूजिंग द लोकस. लोकस इज नथिंग बट द सेट ऑफ पॉइंट्स. सो ये होना ही होना है, दैट इज द लाइन कंटेन्स इनफाइनाइट पॉइंट्स, वेयर एज that infinite line can passes through a point. एक पॉइंट अगर निकाल लो आप, उसमें से infinite number of lines we cross. Now two distinct lines in a plane cannot have more than one common point. यानी जब लाइन इंटरसेक्ट हो रही तो वो एक ही पोजीशन पे इंटरसेक्ट हो रही. इंटरसेक्ट ऐसा इंटरसेक्ट नहीं होता. So two distinct lines in a plane cannot have the more than one common point. It means every two lines are intersect at a point only. Angle, again in the last video we are explained this. Two rays having a common point form an angle, and this common points having the name as, this point is at origin. This is called as a initial ray, which is always along with positive x-axis. This one is called as a terminal ray, and terminal ray is moving on complete one rotation is of 360 degree and having the rotation 0 to 360. The amount of rotation between the initial and terminal is called inclination, representing as a theta. Now angles is also subdivided into many parts, and this is again the basic for you.
Types of angle, acute angle. A angle which is less than 90 degree is called the acute angle. 4th 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ कंसेप्ट कि 90 के साथ खिलवाड़ करो, 90 से कम अगर है तो एक्यूट, 90 ही अगर है तो राइट, और 90 से ज्यादा अगर है तो ऑब्ट्यूज. सेम इज हियर, एन एंगल विच इज लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट. 11th 12th में जाने के बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको यहाँ पे भी प्रॉब्लम आती और उसके लिए ये है. नाउ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट, एंड एन एंगल ऑफ more than 90 or between the 90 and 180 is called obtuse, and an angle of 180 degree is called a straight angle. Again one more angles are there. Reflex angle, ये क्या होता है? तो an angle which is lying between 180 to 360. देखिए, many of the times students learn the obtuse angle in the form of an angle which is more than 90 degree is called the obtuse angle. No doubt it's a correct one, but with a small condition. And condition is when the angle having the measure between 90 to 180 degree is called the obtuse angle, and what's happen if 180 to 360 is called the reflex angle. If a complete rotation is there, one complete rotation is there, then such an angle is called as a complete angle, and one circle is of measurement 360 degree. It means complete angle having the measurement 360 degree. One more thing, complementary angle. Two angles whose sum is 90 degree. If I should say 30, 60, क्या 30 और 60 कॉम्प्लीमेंट है? तो डेफिनेटली है, बिकॉज 30 प्लस 60 दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. इट मीन्स ऐसे कोई भी दो एंगल जिनका सम, जिनकी एडिशन 90 डिग्री आए, दे आर कॉल्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सप्लीमेंट्री एंगल, 90 के जगह पे सम अगर 180 आ जाती है, देन इज कॉल्ड एज अ सप्लीमेंट्री एंगल्स. ओके, नाउ next one, adjacent angle. And in the adjacent angle, two angles are said to be adjacent having a common arm. Common arm in the same, common arm, it means having the same initial ray. Now look at the diagram. O is a common vertex, and COA, BOA, these two are the adjacent angle. एक दूसरे को लग के with the same vertex and with the common arm is called the adjacent angle. Now क्या इतने में ही हमारी नैया पार हो गई? नहीं, फिर एक जरूरत आन पड़ी हमें लीनियर पेयर ऑफ एंगल. लास्ट वीडियो तक तो हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखे थे, और आज हम लोग देख रहे हैं बेटा linear pair of angles, जहां पे, now read this thing very carefully, two adjacent angles form a linear pair of angle if their non-common arms are of two opposite rays. क्या बोल रहा? दो adjacent angles form करते हैं linear of pair angles की अगर their non-common arms are two opposite rays. करेक्ट है, जो कि प्रीवियस में हुआ था. सम ऑफ द लीनियर एंगल्स ऑफ पेयर इज ऑलवेज 180. अ सिंपल एग्जांपल लाइक दिस. एडजेसेंट भी है. क्यों एडजेसेंट है? नाम दे दीजिए बेटा इसको. मैंने दे दिया O, यहाँ पे रखा दिया A, B, और यहाँ पे ये को बोल दिया C. अभी एक रे जो कॉमन जा रही, एक वर्टेक्स जो कॉमनली है वो है O. OC इज द कॉमन, और देखिए यहाँ पे AOC, ठीक है, एंड BOC. समझ में आ रहा? ये कैसे हुए? ये एडजेसेंट है, पर साथ ही साथ इनके दो रेस दो अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं, और ये दोनों को मिला के इसकी जितनी भी होंगी, इसमें इतना अगर मिला देते हैं तो टोटल कितना हो जाता है बेटा?
180 डिग्री। और जब ऐसा फॉर्मेशन बनता है तो इसको कहा जाता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। बढ़िए एंगल बाइसेक्टर की तरफ। एंगल बाइसेक्टर यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे वो बाइसेक्टर। अभी ये किसको बाइसेक्ट करने की बात कर रहा, तो एंगल को। एंगल बनाने के लिए पहले से ही कितने लोगों की जरूरत पड़ रही, तो 2 लोगों की। कौन है वो 2 लोग, मैं और आप है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। वो 2 लोग कौन, इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे। और जब इनिशियल एंड टर्मिनल रे में a line which cuts an angle into 2 equal angles is called angle bisector। बहुत प्यार से यार हम लोगों ने यहाँ पे इसे बोल दिया इनिशियल रे, ये हो गया ओसी यानी टर्मिनल रे। और मान लो मैंने यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल बतला दिया 60 डिग्री का, फिर एक रे आया उसी कॉमन वर्टेक्स में से, सब चला गया और उसने क्या किया, 60 को 2 इक्वल पार्ट में बांटा। अभी इसने 60 को 2 इक्वल पार्ट में बांटा यानी 30-30 बना दिया, 30-30 बना दिया। तो जिसने ये एंगल को बीच में से काटा उसको कहा जाता है एंगल बाइसेक्टर। Second, called angle bisector, and angle bisector can be internal or it's a external। भैया ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। Now internal angle bisector, 2 angles are formed। ये देखो ये जहां पे बने हैं, both angles are equal theta because they are bisect कैसे हुए हैं, तो internally हुए। और अगर इंटरनली के जगह पे ये एक्सटर्नली डिवाइड हुए तो कुछ ऐसे दिखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। ये एंगल है, ये इधर काटा गया है, ये इक्वली ही डिवाइड हुआ है, पर जितना उस ये एक्सटेंडेड वाला जो कंसेप्ट रहता है ना वो वैसे। और सच टाइप ऑफ बाइसेक्टर इज कॉल्ड एज अ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। अभी इतना होने के बाद या इतनी छोटी छोटी चीजें समझने के बाद हमें सॉल्व करने हैं कुछ इस तरीके के क्वेश्चन। जैसे आपके स्क्रीन पे अभी एक सवाल आया है, हाउ मेनी लीस्ट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट डिटरमाइन अ यूनिक लाइन। अभी लाइन किसको कहा जाता है, जब ये ऐसे जाती है तो ये खुद को लाइन कहलाती है। क्या लाइन में कुछ फिक्स है क्या, जब फिक्स हो जाए 2 साइड तो फिर वो लाइन सेगमेंट है, एक साइड फिक्स हो जाए तो फिर वो रे है। इसका मतलब कोई भी यूनिक लाइन जो है वो इनफाइनाइट नंबर से बनी है। तो क्या फिर मेरा करेक्ट ऑप्शन इनफाइनाइट हुआ, तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या, बंदा क्या पूछ रहा, लिस्ट कम से कम कितने डिस्टिंक्ट नंबर्स की जरूरत है, तो कम से कम 2 डिस्टिंक्ट नंबर्स की जरूरत, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स की जरूरत, कम से कम 2। एक लगा दो तो वो फाइन डॉट यानी पॉइंट होगा, पर वैसे ही 2 पॉइंट लगा दो तो लाइन बनने की कुछ चांसेस है। और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लेते बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस अ प्लेन। प्लेन डिटरमाइन करने के लिए क्या पता होना जरूरी है, क्या अ लाइन और पॉइंट ऑन इट। पहले प्लेन पता होगा या पहले लाइन पॉइंट होगा। 2 पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स और नन ऑफ दिस, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन लिखोगे बेटा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। एंड दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक आइडियाज, बेसिक कंसेप्ट रिगार्ड्स विद योर लाइन एंड प्लेन। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है बेटा, बहुत छोटे छोटे इसके टॉपिक्स है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा हम लोग ऐसे ही सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे क्वेश्चंस के साथ। पर तब तक के लिए ये कंसेप्ट पूरा का पूरा एक बार रिवाइज करा लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। पढ़ते समय क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखोगे आप कि लाइन बनती कैसे है, लाइन में एक्सटर्नल इंटरनल एंगल्स कैसे आते हैं, लाइंस कितने तरीके से जाती है, कितने एंगल्स में बीच बीच में करती है, ये सब चीज़ें आपको आने को होना। और नेक्स्ट वीडियो जब आएगा बेटा तब आप इन सब चीज़ों के साथ फैमिलियर होना कि पैरेलल लाइंस बोलने के बाद 2 लाइंस विच आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलने के बाद व्हेन द 2 लाइंस क्रॉस ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड द इंटरसेक्टिंग लाइंस।
फिर आपको लाइन सेगमेंट पता होना, जब किसी लाइन में दो फिक्स डॉट मार लो तो जो बनता है वो लाइन सेगमेंट। लिमिटेड लेंथ रहेगी, वन साइड फिक्स करके वन साइडेड एरो भेज दोगे तो फिर वो रे रहेगा। लाइन इनफाइनाइट पॉइंट्स कंटेन करेगी, इनफाइनाइट लाइंस कैन पासिंग थ्रू एक पॉइंट में से जा सकती है। फिर आएगा आपके पास एंगल, किससे बनेगा तो इनिशियल टर्मिनल रे को लेके बनेगा। एंगल के टाइप्स आएंगे, एक्यूट एंगल, एब्टूस एंगल, देन राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल और एंगल्स में एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स जब आ जाएंगे तब एक जो आपका रे रहेगा वो कॉमन लगेगा, पर वही जब आपके पास लीनियर पेयर आएगी तो एडजेसेंट एंगल की ही बात करनी होगी, पर दो रेज एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे और जिनकी एडिशन हमेशा कितनी रहेगी 180। बाइसेक्टर क्या करेगा, दिए हुए एंगल को दो तरीके से बाइसेक्ट कर सकेगा, या तो इंटरनली या फिर एक्सटर्नली। और ये इंटरनल एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स के साथ, एंगल के साथ, लाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।